So students, in previous lecture we have seen the catalysis, the homogeneous and heterogeneous catalysis, and after that we were observing the adsorption theory of heterogeneous catalysis. After adsorption theory of heterogeneous catalysis, we have also studied about the safe selective catalysis, zeolites, and then enzyme catalysis. Students, when we discuss in detail about the enzyme catalysis, we must know that enzymes are the catalysts present in the biochemical processes or biological processes. These are the catalysts inside the living systems. So let me read the text. Enzyme are complex nitrogenous organic compounds. ये proteins होते हैं, amino acids का sequence होता है, which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules of higher molecular mass and form colloidal solutions in water. They are effective, very effective catalysts. काफी अच्छे catalyst होते हैं. Catalysts catalyze numerous reactions, especially those connected with natural process. बेटा living system में जितनी भी reactions हो रही हैं, सारी की सारी enzymes के द्वारा catalyzed हैं. Okay. Numerous reactions that occur in the body of animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by enzymes. Enzymes जो term है वो biochemical catalyst के लिए use किया जाने वाला term है, and the phenomena is known as biochemical catalysis. Students, बहुत सारे enzyme ऐसे हैं जिनको हम pure crystalline form में observe कर चुके हैं, obtain कर चुके हैं from the living shells. But पहला एंजाइम जो लैबोरेटरी में बना था, right, the first enzyme was synthesized in the laboratory in 1969, just after 100 years of the formation of the periodic table. The following are some of the examples of enzyme catalyzed reactions. इसमें पहला था inversion of cane sugar. लास्ट वीडियो में शायद मैंने इन रिएक्शंस को बहुत तेजी से व्यू दिया था. ओके, बट लेट्स सी इट इन डिटेल. तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में बेटा हो क्या रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट कर जाती है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाते समय ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट कर जाती है. दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. या नेक्स्ट इज, हाँ, और ये होती है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. इस एंजाइम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल में ग्लूकोज का कन्वर्जन. एनारोबिक प्रोसेसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ये, इफ यू कैन ऑब्जर्व, एंड दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम zymes. प्लीज टेक केयर. In the presence of enzyme zymase, this reaction takes place. Yes. So after your conversion of glucose into ethyl alcohol, we are having the conversion of starch into maltose. This takes place in the presence of diastase enzyme. Conversion of maltose into glucose, maltase enzyme. Please keep, if possible, try to learn the names of these associated enzymes. In stomach, you know the digestive system of humans. You all have studied in class 10th biology. So pepsin is the enzyme which converts the proteins into the peptides. Where? In the stomach. While in intestine, the pancreatic juice may release होने वाला trypsin enzyme converts the protein into amino acids by hydrolysis, right? So these are the enzymes which are, yeah, one more example is there, conversion of milk into curd. Whenever the milk is converted into the curd, beta, the enzymatic reactions होते हैं वहां पर. And lactobacillus नाम का बैक्टीरिया
लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है एंड द नेम ऑफ द एंजाइम देयर इज लैक्टेज एंजाइम. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, या वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है इनको, बिकॉज एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट, बट इनका सेलेक्टिविटी और इनका प्रेफरेंस, टेम्परेचर प्रेफरेंस, एनवायरमेंट प्रेफरेंस अलग टाइप का है. ओके, सो वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम catalysis. Enzyme catalysis is unique in its efficiency and high degree of specificity. सोचिए, मतलब स्पेसिफिसिटी तो किसी भी केमिकल कैटलिस्ट में आ जाती है, बट एंजाइम्स के केस में बिल्कुल लॉक एंड की हाइपोथेसिस जैसा है. जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, यूनिक टू दैट लॉक. ओके, इन द वेरी सिमिलर वे इन रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक फिक्स एंजाइम होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए. अदरवाइज आप इमेजिन करिए एक बॉडी के अंदर, यानी एक ही कंटेनर के अंदर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे पॉसिबल है. ओके, so most highly efficient, one molecule of an enzyme may transform 1 million molecules of the reactant per minute. See the efficiency, कितना ज्यादा efficiency है कि सिंगल मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा सकता है. सेकेंड इज हाई स्पेसिफिक नेचर. हाईली स्पेसिफिक मतलब an enzyme, each enzyme is specific for a given reaction. One catalyst cannot catalyze more than one reaction at all. For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea, nothing else. ये किसी भी दूसरे अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएगा. बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? Now, highly active under optimum temperature. What do you mean by optimum temperature? ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक, 35-33 डिग्री सेल्सियस तक, दैट इज इट. इसके अलावा किसी भी टेम्परेचर पर इसके ऊपर या इसके नीचे एंजाइम एक्टिविटी स्लो हो जाती है. ठीक है, 25 to 35 वाला की ज्यादातर बुक्स में रहता है. आपकी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है, तो इट्स ओके, गो विद एनसीईआरटी. ओके, 298 मतलब 25 and 310 मतलब 27, sorry 37. Yeah, human body temperature almost 37 होता है, 310, which is suitable for the enzyme activity. Highly active under optimum pH. इनको एक pH भी फिक्स चाहिए. आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बेसिसिटी बढ़ जाए, enzymes will not react or enzymes will not work in a proper way. So what is the issue? इनको फिक्स पीएच भी चाहिए इन अ रेंज ऑफ 5 to 7. 5 से कम हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएगी, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स. बेटा, कैटालिटिक एक्टिवेटर्स हम आपको पीछे बता चुके हैं, जो कैटालिटिक प्रमोटर होते हैं जो इनको एक्टिवेट करते हैं. एंड कोएंजाइम टर्म आपको बायोलॉजिकल कैटालिसिस में, कई बार बायोकेमिकल कैटालिसिस में देखने को मिलेगा. कोएंजाइम्स आर द एंजाइम्स व्हिच आर वर्किंग इन एसोसिएशन, इन कोऑपरेशन विद अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम. अंडरस्टूड? इतना बात क्लियर हो रहा है? सो दीज आर कोएंजाइम्स. हेलो, हाँ बोलो. Okay. All right. Fine. So highly active under optimum temperature, the rate of the enzyme, ये बात हो गई है. pH की बात हम लोग कर रहे थे. After that, increasing activity in presence of activators and coenzymes. तो एक्टिवेटर या कोएंजाइम की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है. The enzymatic activity is increased in presence of certain substances known as coenzymes. Okay.
It has been observed that when a small amount of non-protein, that is vitamin, is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. Activators के नाम पर हमारे पास सोडियम आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयंस एंड कॉपर आयंस हैं. These metal ions, when weakly bonded with the enzyme molecules, increase their catalytic activity. ये जब enzyme molecule के interaction में आते हैं तो कई बार ऐसा observe किया गया है कि catalytic activity बढ़ जाती है. Okay. It has been observed that when a small non-protein vitamin is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced. Okay. Next is influence of inhibitors and poisons. बेटा catalytic poisons या catalytic inhibitors क्या होते हैं? Which reduce the activity of the enzyme. Okay. So like ordinary catalyst, enzymes are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances. The inhibitors or poisons interact with the active functional groups of the enzyme. हर एंजाइम में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है जो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी या उसकी एक्टिविटी गवर्न हो रही होती है. तो ये जो कैटालिटिक इनहिबिटर है ये जाकर के वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कई बार ये शेप में चेंजेस ले आते हैं. राइट. एज अ रिजल्ट आपकी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है या फिर प्रोहिबिट हो जाती है. Often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzymes. The use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body. ठीक है. जो दवाएं हम लोग खाते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, हमें उसको प्रोहिबिट करना है, तो दवाएं जो होती हैं वो ज्यादातर एंजाइम एक्टिविटी में एंजाइम प्रोहिबिटर्स होती हैं. राइट. तो वो जाकर के उस पर्टिकुलर रिएक्शन को रोक देंगे, आपको रिलैक्स्ड पीसफुल फील होने लगेगा. बात समझ आ रही है? Okay, let's move on. Mechanism of enzyme catalyst, very important. होता क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा. There are number of cavities. There are a number of cavities present on the surface of colloidal particles. Colloidal particles की surface पे बहुत सारे cavities present होते हैं. Cavities का मतलब कोई particular group. Right. So these groups like NH2, COOH, अमीनो ग्रुप या फिर एसिड ग्रुप, ये तो आमतौर पर प्रेजेंट ही होगा एंजाइम में. इसके अलावा थायोल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है. These are the actual active sites, active centers जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है आकर के, क्योंकि कैटालिस्ट जाकर के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स की ये रिएक्शन करवा रहा है उनके साथ अटैच ही तो होता है थ्रू सम फंक्शनल ग्रुप. राइट. एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो उसके पास प्रेजेंट है. So centers for the surface of enzyme particles, the molecules of the reactant, that is substrate, which have complementary shape. आप देखिए बिल्कुल लॉक एंड की हाइपोथेसिस जैसे इनके कॉम्प्लीमेंट्री शेप होते हैं और इस वजह से इनमें इतना ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है. ऑलराइट. सबस्ट्रेट से एंजाइम जाकर के फिक्स हुआ, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट ऐसा होगा जो अपने आप एंजाइम की सरफेस को छोड़ दे. यही तो हम लोगों ने एडसॉर्प्शन थ्योरी में पढ़ा था. राइट बेटा. Now catalysis in industry. So in industry we are having many examples. For example, we are having Haber's process, a very important reaction for the formation of ammonia, and 2 + 3H2 gives 2NH3, and this reaction takes place in presence of iron and molybdenum. Iron catalyst with molybdenum as the catalytic promoter. Okay. At 723 to 777 Kelvin temperature. Ostwald's process for the manufacture of nitric acid. How does it take place?
4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, और उसके बाद फिर 2NO plus O2 gives NO2, और फिर ये NO2 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is mixed with water with oxygen to give nitric acid. ये होता है in presence of platinized asbestos. Asbestos sheet दफ्ती जैसा शीट होता है, बट उसमें प्लैटिनम, यहाँ पर सरफेस कैटलिस्ट प्लैटिनम है. ओके, contact process is for the manufacture of sulfuric acid. ओके, इसमें हम SO3 बनाते हैं और फिर SO3 को H2SO4 में घोल करके ओलियम फॉर्म करते हैं. ओलियम का हाइड्रोलिसिस करने पर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस यूज कर सकते हैं या फिर वेनाडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं. V2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड. ठीक है, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम कर लेता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा के. और टेम्परेचर यहाँ पर हमें लेना पड़ता है लगभग 673 to 723 केल्विन. Haber's process, Ostwald process and contact process, all three are very very important for you. Okay, for competitive as well as school examinations. Why is it necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber's process? काफी अच्छा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आई विश कि आप सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं और करेंगे. Why? Alright, so go through all these in text questions. Next lecture will be on colloids. वैसे मैं भी आपको शॉर्ट बता दूं, एक बार रिकॉल करा दूं कि बेटा प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. होमोजेनस मिक्सचर्स को हम दो सब्सटेंसेस में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. होमोजेनस की कैटेगरी में हमारे ट्रू सॉल्यूशंस है, जबकि हेट्रोजेनस में वी आर हैविंग कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस. सस्पेंशन का पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो अनस्टेबल होते हैं और समय के साथ उनके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइड का पार्टिकल साइज 10⁻⁹ to 10⁻⁷ नैनोमीटर की रेंज में होता है. कॉन्सिक्वेंटली ये काफी स्टेबल होते हैं. ऑलराइट, so this is it for today students, and in next lecture we will go through colloids. मैं चाहता हूं कि आप लोग लेक्चर लेने के पहले एक बार कोलाइड्स का रीडिंग करके रखेंगे तो और अच्छे रिस्पांस मिलेंगे. थैंक यू. Will you take the screenshot for the present students? Yes, sir.